हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो। आज की क्लास में हम ट्रिक्स को करने जा रहे हैं, ट्रिक्स ऑफ पूली कंस्ट्रेंट। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पूली का क्वेश्चन किया है, देयर वी एक्चुअली वेंट थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंस्ट्रेंट, है ना। हमने स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट लिया जो कि होता है इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग एंड पूलीज, राइट। So and then we saw ki what change in segment of the string is happening because of masses moving attached with the string, right? और उसके बाद हमने सारे चेंज को जीरो से इक्वेट किया था, and then we got relation between velocity and acceleration or displacement of particles connected, right? So that was whole a big process, I would say. That was a bit more time consuming. आज हम ट्रिक्स को पढ़ने वाले, तो आप सोच रहे होगे मैम आपने पहले क्यों नहीं बताया। सो द रीजन वाज आई एक्चुअली वांटेड यू टू इमेजिन हाउ पुली वर्क्स। आई एक्चुअली वांटेड यू टू नो आई मीन हाउ टू लुक एट पुली प्रॉब्लम्स, बिकॉज नॉट एवरीवेयर ट्रिक्स विल वर्क। इट विल वर्क इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट कहीं पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे एक्चुअली आपको इमेजिन करना पड़ेगा हाउ द पुली इज वर्किंग। एंड फॉर दैट पर्पस आई टुक यू थ्रू real constraint relation writing process in so many questions, but today is the day when we are going to really crack the trick. So देखो trick है क्या actually, it is, you can write it like summation sign is this sigma summation of tension, take it as a vector, this is a force, dot displacement equal to 0. This equation we are going to use in order to bring out constraint relation. So what is this? This is dot product of force and displacement, you can see, right? So x will be the displacement of blocks connected to the string, t will be the tension in that particular portion of a string connected to the block. So basically dot product of force and displacement, it is work done basically. So यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, work done is equal to 0. We don't have to go much deeper into why we are using this. This is actually the end product of so much calculations done. So we have to only focus on end product, and that is sigma of t dot x is 0. ठीक है, तो चलो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे ये देती हूँ। और देखो ये इक्वेशन यूज करना कब बेनिफिशियल होगा, व्हेन यू आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ टेंशन। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग टेंशन डिफरेंट डिफरेंट लाइक T1 T2 T3 which are not connected with each other, then you should not use this trick. क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा आता है, सपोज कर लो T1 x1 plus T2 x2 is equal to 0. If you are getting like this, so then you will be getting T1 x1 is equal to minus T2 x2. In this case, you are not able to find out relation between x1 and x2 because T1 and T2 are also variable which are not connected. But अगर मैं बोल दूं कि T2 is equal to 2T1, then it becomes easier, right? अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो T1 x1 is equal to minus 2T1 x2. So T1 हो जाएगा cancel. Now we are getting relation between x1 and x2. Sorted. So when we will be using it, how we will be using it, we will get to learn more while we will apply this trick. So चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है, we have already done this question. You can just click on the I button and you can look at that question the way we did earlier by using constraint relation. ठीक है, चलो अभी हम ट्रिक को यूज करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करो जैसा कि हम पहले करते आए हैं। दिस इज द स्ट्रिंग। व्हाई वी आर आइडेंटिफाइंग अ स्ट्रिंग, बिकॉज दैट विल हेल्प अस इन रियलाइजिंग if tension is same throughout the string or not. So ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसके throughout tension क्या होने वाला है, same. So this is T and this is also T. Now what is the tension in this small portion which is connected to the mass A? क्या होगा, इस पुली को आप बाहर निकाल के ऐसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिख लो। इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, यहाँ भी टेंशन T लग रहा है, नीचे से एक छोटा सा स्ट्रिंग है, लेट्स से यहाँ टेंशन T डैश है। Let's say net force acting on it is 2T minus T dash, and this should be equal to, according to Newton's second law, mass into acceleration. And this is a massless pulley, mass is 0, so 2T has to be equal to T dash. So T dash is equal to 2T. आज की क्लास में जो भी डिस्कशन होगा पुली के अराउंड, ऑल पुलीज आर मासलेस, फ्रिक्शनलेस, strings are inextensible, everything is ideal, so we will be simply using these cases. ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पता चला कि A से जो ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें टेंशन क्या है, 2T. Now let's say A is moving up by distance xa and B is moving down by distance xb.
लेट्स से दिस। उसके बाद आप क्या करना ना, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली इंडिकेट टेंशन, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0, राइट। सो इस पे देखो टेंशन, ये वाला स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एंड नेट टेंशन इज 3T, ठीक है। एंड बी के लिए अगर आप करो तो टेंशन है T, डन है। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ है। अब आप सिग्मा T डॉट ए करो, क्या होगा फर्स्ट के लिए, तो T क्या है 3T डॉट ए डॉट डिस्प्लेसमेंट करोगे तो 3T और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, so their dot product will be simply multiplication of these two things, right? So 3T into XA। और सेकंड केस में क्या होगा देखो, टेंशन और एक्स बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड विल बी व्हाट, आई मीन इट विल बी सिंपली, अगर T डॉट A लिख रहे हो और दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, यू विल बी राइटिंग TA cos 180, दैट इज cos 180, दैट इज -1, सो -TA। सो जहां भी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में दिख रहा है प्लस साइन दोगे, जहां भी ऑपोजिट दिख रहा है यू विल बी गिविंग नेगेटिव साइन। सो यहाँ पे आप लिख दो नेगेटिव TXB इज इक्वल टू 0। क्या मिला मुझे, मुझे मिला 3XA इज इक्वल टू XB। Differentiate it with respect to time, you will be getting 3VA is equal to VB. Further differentiate, you will be getting 3 times acceleration of A is equal to acceleration of B. So we have got the relation of what? Constant. सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग को पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, यहाँ पे ऐसे 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 है ना, सिंगल स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन आप T ले लो, इस पॉइंट पे टेंशन T T T, एंड यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 2T, सो इससे जो टेंशन लगा है वो 2T ले लो, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, लेट्स से ये इधर की तरफ जा रहा है, ये जो ब्लॉक है C कितने से, सपोज कर लो XC से जा रहा है ऊपर की तरफ। अब आप निकालो सिग्मा T डॉट A सारे बॉडीज के लिए, ठीक है। सो ये वाले एंड पॉइंट के लिए अगर आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, T टेंशन किधर है, ये स्ट्रिंग ऐसा है ना, इसमें टेंशन हमेशा किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन देख रहे हो, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, सो दिस, एंड इट्स वेलोसिटी इज वेयर टू द राइट, टू द लेफ्ट सॉरी, और टेंशन इज टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे -T इंटू 2 डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो आप एक काम करो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख लो, रिलेशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा, बट सिंस वी आर राइटिंग सॉरी T डॉट एक्स कर रहे हैं ना हम, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, सो -T, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, सो -T XA ले लो, और B की बात करो, टेंशन इज अप, डिस्प्लेसमेंट XB इज इन डाउन सेंस बिकॉज वेलोसिटी इज इन डाउन सेंस, सो आप क्या लिखोगे, यहाँ भी -T XB होगा। C की बात करो, टेंशन इज अपवर्ड, C पे टेंशन किधर लग रहा है, अप, और डिस्प्लेसमेंट इज अप, सो दिस विल बी 2T XC इक्वल टू 0। सो मुझे क्या मिल रहा है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 2XC, यानी कि VA प्लस VB इज इक्वल टू 2VC। तो आप VC का वैल्यू निकाल सकते हो, VA प्लस VB कितना हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड, सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। चलो अभी और भी करते हैं, सारे क्वेश्चंस को करते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 बॉडीज है, स्ट्रिंग कितने हैं, सिंगल है, ध्यान से देखना, ये ऐसा स्ट्रिंग है, थ्रू आउट सेम है, सिंगल स्ट्रिंग, टेंशन थ्रू आउट इज सेम, इसमें टेंशन T T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, ये भी रहा T, ये भी T, तो ये वाला जो है और ये वाला, जिस स्ट्रिंग से A is connected and B is connected, that small string will have tension of how much, this will have a tension of 2T, if you write this as a B, this will have a tension of 2T, ठीक है, like this। Let's say now A is moving in towards right with how much, by how much distance, let's say XA, and B is moving towards left with by distance XB, and let's say C is going down by XC। अब आप सिग्मा T डॉट X कर दो, ये 0 होगा। सो A के लिए अगर आप करते हो तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम सेंस 2T XA, B के लिए करते हो टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम सेंस 2T XB, और अगर आप C के लिए करते हो तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन -2T XC इक्वल टू 0। सो हमें क्या मिला, XA प्लस XB इज इक्वल टू XC, दिस इज द रिलेशन वी आर गेटिंग, डन,
क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फिर से, वी विल प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये सिंगल स्ट्रिंग है ना ऐसा, ठीक है। सो बी जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इन दैट स्ट्रिंग टेंशन इज हाउ मच, टी, डन है। एंड ए इज कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग एंड इन दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी इक्वल टू हाउ मच, पुली को देख लो, पुली के इस साइड this string will have tension T, this will have T, this will have T, because all these three segments are the part of same string. So this is T and this is T. So this side tension has to be 3T. So here tension is 3T. So now let's say A is moving in this direction by XA and B is moving in this direction by XB. Use sigma T dot X is equal to 0. ए और बी के लिए लिखो, ए के लिए अगर आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन आर इन सेम डायरेक्शन, सो 3t इंटू एक्स ए, और बी के लिए क्या है, टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टी एक्स बी इज इक्वल टू 0. सो 3 XA इज इक्वल टू XB, यानी कि 3 VA इज इक्वल टू VB, यानी कि 3 एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ B. सॉर्टेड? अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझते। सबसे पहले स्ट्रिंग को आप सॉर्ट कर लो, सिंगल स्ट्रिंग है ना ये पूरा, है ना। सो इफ दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग देन टेंशन थ्रू आउट विल बी सेम, ये टेंशन T T T, यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 2T and here tension is 2T. Okay, let's say A is going down by distance XA and B is going in this side by distance XB. अब आप यूज करो सिग्मा T डॉट A, सॉरी T डॉट X इज इक्वल टू 0. अगर आप ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा बताओ, A के लिए क्या लिखोगे, टेंशन इज अप, डिस्प्लेसमेंट इज डाउन, सो 2T XA विथ नेगेटिव साइन. B के लिए आप क्या लिखोगे, बी का देखो टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 37 डिग्री एंड बोथ आर आई मीन इन एंगल 37 है ना, तो आप लिखो T डॉट ए एक्स बी, सो T एक्स बी कॉस 37, डॉट प्रोडक्ट कर दो सिंपल, इक्वल टू 0. सो यहाँ से T तो कैंसिल होगा, 2XA इज इक्वल टू क्या दिख रहा है हमें, 2XA इज इक्वल टू XB, cos 37 क्या होता है बताओ, cos 37 is your 4/5. So this will become how much, XB will be how much, 5/2 XA. ठीक है, so velocity of B will be 5/2 VB. अब ये निकाल लो कितना आएगा, 5/2 VB क्या है 10. So that will give you 25 meter per second. We have done all these questions before by using different constant method जो हमें पढ़ना होता है, constant जो हमें पढ़ना है ना उस मेथड से किया है हमने. These are shortcuts we can use, right? अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं क्या, अगेन वी नीड टू चेक विथ इट. अब देखो दिस इज वन स्ट्रिंग, दिस इज वन स्ट्रिंग, राइट, एंड दिस इज अनदर स्ट्रिंग, this is another string, these two are not same. ठीक है, so let's say here tension is T1, here tension is T2, done है, and if here tension is T2, here it will be T2 and here it will be T1 and in this string what will be the tension. So इस नॉट को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस नॉट एंड दिस इज जिसको हिंदी में गांठ बोलते हैं, सो दिस नॉट इज बेसिकली मासलेस. अगर आप इस पे फोर्सेस को देखते हो तो क्या क्या होगा, नीचे की तरफ इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, सो लेट्स से दैट इज T एंड इधर की तरफ फोर्स क्या जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग कंपोनेंट विल बी हियर T1 cos theta and because of T2 component will be T2 cos theta and also T1 का एक component इधर की तरफ होगा T1 sin theta and इधर की तरफ होगा T2 sin theta. Theta is same on both sides, right? And if this knot is massless, force on it in every direction coordinate system should be 0, right? So x direction में 0, y direction में 0. इसका मतलब ये हुआ कि T1 sin theta is equal to T2 sin theta. साइन थीटा कैंसिल्ड, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि टेंशन T इज इक्वल टू, let's say T1 equal to T2 equal to T dash. So tension in this string will be equal to how much, T should be equal to 2T dash cos theta by vertical equilibrium, right?
So we have, देखो, we cannot use that. You don't need to get confused here. यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये यूज करना है t dot x equal to 0. So without doing all these calculations, let's first use this. अगर आप इसको without use किए करते हो ना, तो चेक करो p के पास क्या है. Let's say p is going down by distance xp and q is also going down by distance xq. ठीक है. And m is going up by distance x. Let's use it. So p के लिए आप क्या लिखोगे? Tension is acting up, t1 is up and displacement is down, so that is minus t1 xp. Q के लिए क्या लिखोगे? माइनस t2 xq, क्योंकि टेंशन अप है और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, सो टेंशन अप है, डिस्प्लेसमेंट डाउन है. M के केस में देखो, टेंशन इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, राइट. सो इस केस में आप लिखोगे प्लस 2tx एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो यहां से आप देखो t को कैंसिल नहीं कर सकते, राइट. यू कैन नॉट गेट कंस्टेंट रिलेशन अनलेस एंड अंटिल यू नो द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t, राइट. ये हमारे लिए जरूरी है. सो इसलिए मैंने क्लास के पहले में ही बोला था कि ये कंस्टेंट, ये ट्रिक हम तभी यूज कर सकते हैं जब तुम्हारा टेंशन क्या हो. टेंशन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज से जो स्ट्रिंग अटैच है उसमें टेंशन विल बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर. इफ दे आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, दे कैन नॉट बी रिलेटेड विथ ईच अदर. इट्स इम्पॉसिबल टू यूज दिस ट्रिक. ठीक है. बट यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं. हमें पहली चीज तो ये मिली कि T1 एंड T2 आर इक्वल. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे T1 T2 इक्वल किया, उसको लिखा मैंने टी डैश एक्स पी प्लस एक्स क्यू. ठीक है. और टी को क्या लिखा? 2t डैश कॉस थीटा. सो यहाँ पे आप लिखोगे 2t डैश कॉस थीटा एक्स. अब हमारा सॉल्व हो गया है ना. टी डैश कैंसिल होगा और क्या मिलने वाला है हमें? हमें मिलेगा 2 कॉस थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एक्स क्यू, राइट. एक्स पी प्लस एक्स क्यू. So this is the relation we are going to get. So this is how we will be using this thing, sigma t dot x is equal to 0. I hope you have understood whole the concept and I hope you will be using it for your future questions. Thank you. Even if you are having any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you.